With growing urbanization in the country, ratio of the population living in villages and cities is continuously changing. Cities are expanding. Their boundaries are expanding in all directions. Where one could find fields only till yesterday, there is widespread inhabitation today. The pressure to acquire land looms large. Land uses are changing. Rural areas previously on the periphery of cities are now within city limits. They may very well have come into city limits, but are still bereft of the basic urban facilities. This kind of areas are defined as peri-urban. The primary reasons for the constant expansion of cities are more opportunities for employment and better livelihood options, encouragement to real estate, cheap and easy accommodation in growing property market, forceful displacement, extreme migration, etc. Cities are considered to be the main centers of economic activities. According to statistics, urban constituent in GDP is 65%. It is also a fact that 79% of urban workers are working in informal sector. Informal sectors means employment devoid of social economic security. In changing economic scenario, the status of people employed at different levels varies. Even though their competence and needs differ, yet the fulfillment of basic needs is essential for everyone. Safe and secure inhabitation is a basic requisite. The urban bodies such as development authorities, Awas Vikas Board, municipal corporations, etc. seem to be incapable of dealing with the mounting pressures that come with rapidly increasing population due to their limited resources. Whereas, every family nurtures the dream of a secure home. In these circumstances, business of turning this dream into reality flourishes in nearby areas of the cities. शहर से हमारी दूरी जो लैंड है उसको देखने के बाद ये आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर प्लॉटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ज़मीन का निरीक्षण करते हैं और आसपास की लोकेशन देखते हैं कि यहाँ पर अगर प्लॉटिंग की जाए तो प्लॉट बिक जाएंगे, एक नई सिटी बस जाएगी या नहीं बस जाएगी। तो उसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, ज़मीन को देखने के बाद किसान से मिलते हैं जिनकी ज़मीनें होती हैं, फिर उनसे अपना रेट तय हुआ करता है। रेट जब तय हो जाता है तो उसमें एक शर्त रखते हैं कि भाई हमको इतने दिन का टाइम चाहिए, 6 महीने, साल भर, 4 महीने, 2 महीने का टाइम चाहिए हमको। तो टाइम जब ले लेते हैं, किसान जब एग्री हो जाता है तो उसको जो है जो बयाना बतौर होता है उसको दे करके काम करने का टाइम ले लेते हैं और फिर उसको हम लोग डेवलप करते हैं अपने स्तर से, मैप बनवाते हैं, KDA से अप्रूवल कराते हैं और 25 फीट 30 फीट जैसी साइड होती है, जो भी होता है उसका जो है हम रोड मैप निकालते हैं। और रोड मैप निकालने के बाद में ये भी देखना पड़ता है कि रोड में हमारी ज़मीन कितनी जा रही है। उसी आधार पर हम छोटे छोटे प्लाट टुकड़ों में बांट देते हैं और अपनी प्लॉटिंग का एक कोई भी कंपनी का नाम रख करके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के आधार पर अपनी प्लॉटिंग काटते हैं और उस प्लॉट को बेच करके हम जो है किसान का पैसा उन्हें वापस करते रहते हैं। उसमें जो भी बेनिफिट होता है थोड़ा बहुत हो जाया करता है। Many people get inclined towards such alluring offers to realize their dreams in affordable prices. This agricultural land usually belongs to any farmer.
agreement to sell this land is done with farmer by a registered or non-registered society. Then, plots on this land are marked and sold out. In spite of its faraway location from the city at the time of sale, keeping in mind the rapid development of city, people start buying this comparatively cheap land and the area slowly gets populated at the limits of city. But mere construction of a house is not enough for a family to live. Other numerous facilities such as roads, electricity, water, sewer lines, drains, street lights, etc. are also required. But this is an agricultural land, and without changing the land use, it cannot be considered as residential area. Therefore, this inhabitation is kept away from rest of the facilities. सोसाइटी क्षेत्रों में गवर्नमेंट का कहना है कि विकास कार्य हम नहीं करा पाएंगे सोसाइटी क्षेत्रों में। इसकी एक वजह है कि जो प्राइवेट प्लाटिंग हुई है इसका 143 नहीं हुआ है, न इसकी सरकारी तरफ से पहल हो पा रही है। जब तक इसका 143 नहीं होता है, इसका डेवलपमेंट चार्ज नहीं जमा होता, बटरमेंट चार्ज, तब तक गवर्नमेंट विकास कार्य कराने के लिए तैयार नहीं है। एक सेक्शन 143 है जिसमें लैंड यूज चेंज की बात है। तो लैंड यूज चेंज जो है, जैसे मान लीजिए शहर का जो एक एरिया ऐसा है जो एग्रीकल्चरल था, अब उसमें एक कॉलोनी डेवलप करना कोई कॉलोनाइजर चाहता है या लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो अब उस लैंड यूज को चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि उसका प्रोसेस अपनाया जाए। तो लैंड यूज चेंज का जो प्रोसेस है वो ये है कि जो लैंड यूज है ये मास्टर प्लान में डिज़ाइन होता है कि किस एरिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। और सपोज के लिए एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में वो मास्टर प्लान में प्लान है, तो उसको चेंज करने के लिए जो उससे अफेक्टेड लोग हैं दे विल मेक एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन देंगे। वो एप्लीकेशन उनके जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड में जाती है। बोर्ड उसके प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करता है कि क्या ऐसा करना उचित होगा नहीं होगा। अगर बोर्ड चाहता है कि हाँ नहीं होना चाहिए तो उसको रिकमेंड करता है। उसकी रिकमेंडेशन फिर स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, क्योंकि मास्टर प्लान में चेंज करने की पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट अपने एडवाइजरी के लिए उसको जो हमारा प्लानिंग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है वहाँ भेजता है, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से फिर वो अगर वो पॉजिटिव रिकमेंडेशन है तो फिर गवर्नमेंट में जाती है, और गवर्नमेंट फिर उसको देख करके फिर सैंक्शन करती है। तो सैंक्शन के बाद फिर मास्टर प्लान में अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो मैं समझता हूँ बड़ा लंबा प्रोसेस है और इसको थोड़ा ईज़ करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें जो मैंडेटरी फॉर्म्स हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के, उसमें एक प्रोविज़न किया है कि इस तरह के जो चेंजेस हैं उसको थोड़ा सा liberalize किया। So now people have to resort to getting hand pumps fixed or boring done for water. In absence of sewer lines, they have to opt for soak pits. But dirty water from drains spreads all around houses, resulting in a perpetual state of filth. This filth is gateway to the world of disease and malady. It takes a great deal of continuous effort to acquire an electricity connection, sometimes authorized, sometimes unauthorized. After an enormous amount of struggle, street lights are fixed, but that too on wooden poles. Pit after pit is found in the name of roads. With the passage of time, this area also comes within city limits. Municipal Corporation starts collecting house tax here. The addresses here also get validity. But due to non-payment of development charges, local bodies do not undertake any kind of development work. हमारा वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, हाउस टैक्स की रसीदें हैं, हाउस टैक्स नगर निगम में जमा करते हैं। इसके बाद भी कोई विकास नहीं होता है। नेता आश्वासन जरूर दे देते हैं कि हम आपकी विकास करवाएंगे, मगर कोई काम को करवाता नहीं। जब जीत जाते हैं उनसे मिला जाता है तो वो ये कहते हैं कि ये सोसाइटी क्षेत्र की ज़मीन है, सोसाइटी क्षेत्र का एरिया है, इसमें हम विकास नहीं करवा पाएंगे, शासन का ऐसा आदेश नहीं है हमारे पास। इस तरह से बातें करके के आज की तारीख में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, जीरो की स्थिति में है। In short, what people get is a life in hell, but satisfaction
of having a roof above one's head is definitely gained. में हम रहते तो करते क्या, खेती किसानी करते। आज जो हमारे बच्चे अफसर बन गए, लड़की डॉक्टर बन गई, वो सब यहाँ रहने से, पढ़ाई लिखाई से हुआ ना। और हमको दोबारा री एम्प्लॉयमेंट मिल गया, हम भी जॉब करते रहे। 15 साल तक हमने फिर जॉब किया। अब 2009 से हम रिटायर्ड हो गए। गांव में तो ये नहीं हो पाता ना। Since cities are centers of economic activities, then workers are also required to keep it in motion. Workers who come from far off rural areas start living around their places of employment. This leads to the development of such inhabitation, which is devoid of basic facilities and services. Workers cut, fill and level these rough, underdeveloped land, pits and most useless mounds near their industrial unit to make them livable. Years of hard work makes business bloom and the inhabitation also becomes populous. With the passage of time, this area that was once on periphery of the city was peri-urban, reaches in the mid of city. With property prices escalating, the cost of this land too rockets sky high. Subsequently, land mafia and influential people set their greedy eyes on this land that is well worth its price in gold. ये जो बस्ती है, इसके चारों तरफ पास एरिया है, जिसमें लगभग 50,000 रुपये गज के हिसाब से ज़मीन बिक रही है। वो हमेशा उनकी गिद्ध नज़र इस बस्ती के ऊपर पड़ी हुई है और इन गरीबों की बस्ती को उजाड़ के ऊंचे ऊंचे आशियाने बनवाने चाह रहे हैं। इसलिए ये बेचारे, जिस तरह तमाम बस्तियों का विकास हो रहा है, इस बस्ती का विकास नहीं हो पाता है। अभी 4 महीना पहले मैंने यहाँ पे विकास नगर निगम से बाकायदा टेंडर हुआ 18 गलियों का। टेंडर के बाद वर्क आर्डर हुआ नगर निगम से, वर्क आर्डर के बाद काम हुआ, 60% लगभग काम हो चुका था। इसके बाद केडीए का लेटर एक आ गया कि तुरंत काम रोक दिया गया। ये रोक दिया गया कि ये जगह कानपुर विकास प्राधिकरण की है। जब ये जगह कानपुर विकास प्राधिकरण की थी तो टेंडर जब हुआ तो उस वक्त आपत्ति क्यों नहीं आई? जब नगर निगम ने एस्टीमेट बनवाया तो आपत्ति क्यों नहीं आई? जब ये बनने लगी जगह तो तमाम आपत्तियां आ गई और केडीए से लेटर आ गया कि ये जगह कानपुर विकास प्राधिकरण का है। और ये जो हमारे गरीब तबके के मजदूर साथी जो यहाँ लेदर इंडस्ट्रीज़ में कोई खड़खड़ा, रिक्शा, टेंडी के मजदूर हैं, किसी तरह अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं, उनकी ज़मीन को खाली कराने के लिए कहा गया। But what to do with the people who, having made this place inhabitable and have been living here for decades? As years went by, house tax got paid. Electricity connections were installed. And voter ID cards were made. But the only issue is that they do not legally own the land they live on. But is that reason enough for agencies working for the development of city to oust and evacuate these people from their humble abodes? अचानक कोई सूचना दिए बगैर हम लोगों के मकान 3 दिन जेसीबी चलाई गई, बुलडोज़र पीएससी के बल पर, और गिराया गया, लाठी चार्ज वगैरह सब कुछ हुआ। फिर हम लोगों ने एक संस्था बनाई दलित अल्पसंख्यक कल्याण समिति के नाम से, जिसका रजिस्ट्रेशन 1998 में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हम लोगों को जजमेंट मिला। जजमेंट मार्कंडेय ने दिया कि इनकी पहले व्यवस्था किया जाए, फिर बाद में इनको गिराया जाए। The government constructs houses for rehabilitation and pursues people to settle in. But people are not willing to move. There are many reasons for their reluctance, such as these houses are at an inconvenient distance from their workplace. The quality of these houses is not satisfactory, and people are not granted ownership of these houses, but are merely given a certificate of possession. Also, other basic amenities required for a convenient living, such as schools, places of worship, markets, cemeteries, etc.,
become too far and add to daily hardship. तमाम घर गिराए गए। इस बस्ती में लगभग 450 मकान थे जो गुंडाई के बल पे, दमंगाई के बल पे रातों रात परेशान करके, महिलाओं को प्रताड़ित करके, हम गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करने चले जाते हैं, यहाँ महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। रात रात में आकर के कट्टे और बंदूक बम के बल पे घर खाली करा लिए जाते हैं। इस तरह से हमारे लगभग जो है 25-30% झोपड़ी यहाँ से उजाड़ दी गई हैं, जो कहीं गए नहीं हैं। कोई रोड में बस्ती किनारे पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई किराए को लिए है, सब हमारे बस्ती ही में रह रहे हैं। क्योंकि उन बेचारों के पास जब शुरू से बुजुर्गी से यहीं रह रहे हैं, कहीं पर कोई साधन बनाया नहीं। आज इस महंगाई के दौरान कहीं कोई झोपड़ी बना नहीं सकता है। उस समय कोई ऐसी ज़मीनों में रहने को तैयार नहीं था, आबादी कम थी, इसलिए गरीब आदमी को जो मिलता था गंदी संदी जगह वहाँ बना के रह लेते थे। आज कहीं झोपड़ी भी नहीं बना सकते। At some places, public unions are formed. संगठन बनाया कि उसमें 100 आदमी हो गए, उनसे 25 रुपये 50 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से फीस रखी गई कि इतना पैसा जमा होगा। इससे हमारे पास 10,000 रुपये जो मासिक जमा होता है, उससे जो रोड और नालियाँ टूटी पड़ी हुई है, यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, उससे मलबा खरीद करके, मिट्टी खरीद करके उन गड्ढों को पाड़ने काम करते रहे। लेकिन नई आबादी होने की वजह से बीच बीच में कई प्लाट खाली पड़े रहते, तो उसमें लोग बोलने लगे भैया हम कहाँ तक देंगे, 4 प्लाट खाली पड़े हुए हैं, 4 ये बने हुए हैं और रास्ता तो आखिर तक जाती है। इस तरह से वो भी काम हमारा सफल नहीं हो पाया और वो हमारी समिति बंद हो गई। Sometimes people's representatives are approached to help resolve issues, but due to weak policies and self-centered political reasons, they are in no position to help. 15 साल से इस नरक में रह रहे, जहाँ की चुनाव के टाइम पे तो नेता आते हैं, बहुत लंबे लंबे भाषण दे के जाते हैं, पार्षद आते हैं, सांसद आते हैं, लेकिन आने के बाद जीत जाते हैं तो शायद एक बार नारा लगवा जाते आधी गली से, और अंदर गली में वो भी नहीं आते। This is the stark truth of peri-urban territories. Gradually, this peri-urban merges into urban. But by then, yet another peri-urban starts developing on the extended city borderline. जब हम गांव जाते हैं तो हमको वहाँ स्वर्ग जैसा नसीब होता है। हवा नेचुरल मिलती है, पानी नेचुरल। यहाँ जीटी रोड से उतरते हैं नरक। It appears as though forcing people to lead a life full of strife and suffering is the sole objective of leadership, and those caught in this web suffer the consequences for a mistake they never even made.